Your early life was based in Sultanpur, and how did that shape your life? Shape up your choice in terms of choosing the Bollywood career. I was born in, like you can say, a very small district of Uttar Pradesh. Right. It ended up giving me exposure to lot different kind of people, Yeah. and lots of different kind of friends and cultures. Today, as we listen to his story, we discover not just the filmmaker, but the dreamer, the doer, and the human being behind the camera. Aditya is not afraid to experiment, whether it is blending genres, highlighting difficult truths, or presenting stories of unsung heroes. His recent project, Sant Tukaram, reflects his ability to balance history, spirituality, and artistry with sensitivity and depth. Beyond the big screen, Aditya is also known for his contributions as a writer, poet, and social worker. He has been part of initiatives that bridge cinema and community, showing that storytelling can go hand in hand with responsibility. Aditya Om sir, Yeah. welcome to Meri Kahani, Meri Zubani. Thank you so much for calling me here. Very interesting title, Meri Kahani, Meri Zubani. Yeah. Very nice. So this will be in Hindi and English, both. Yeah. दोनों. Whatever you हाँ, want. ठीक है. नहीं क्योंकि टाइटल हिंदी है तो फिर. ठीक है. Yeah. Okay. So your early life was based in Sultanpur, and how did that shape your life? Shape up your choice in terms of choosing the Bollywood career. I was born in, like you can say, a very small district of Uttar Pradesh. Right. तो बहुत ही छोटी सी जगह थी, and my father was in a transferable job. Okay. तो मतलब हर जगह पिताजी का ट्रांसफर होता रहता था. कहीं हम लोग 2 साल रहते थे, कहीं 1 साल रहते थे. तो पूरा वैसे हम लोग पूरा इंडिया घूम लिए. तो उसने शेप अप किया, डेफिनेटली शेप अप किया, बिकॉज it ended up giving me exposure to lot different kind of people. Yeah. And lots of different kind of friends and cultures and societies. तो that was a very good starting point for me. हाँ, मुझे उस समय थोड़ा सा बुरा लगता था कि हर 2 साल पे नए दोस्त बनाने पड़ते हैं. नया स्कूल. हाँ, नया स्कूल बनाना पड़ता है. और स्कूल्स भी आज के जैसे स्कूल्स नहीं थे. Right. उस टाइम पे बड़ी बुलिंग वगैरह होती थी स्कूल्स वगैरह में. आजकल तो उतना नहीं होता है. एवरीवन इज सो तो वो थोड़ा सा एक ग्रोइंग अप हिकअप्स थे. बट रियली इट हेल्प मी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यू नो. Yeah. तो फिर वो इट हेल्प मी ग्रो एज अ पर्सन as well, and get exposure to different things, and so it helped me crystallize a view कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ. And I was very clear. मतलब मैं बचपन में बहुत ही क्लियर था कि मुझे क्या करना है. So I was like my dad and my mom, they used to, जैसे सारे बच्चे होते हैं ना कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उस समय सारे बच्चे ही बोलते थे. Right. आज भी शायद बोलते होंगे. जो कुछ फैंसी होते थे वो बोलते थे एस्ट्रोनॉट बनना है. हाँ, जिनको पता था कि क्या होता है. अच्छा, मैं हमेशा बोलता था मुझे हीरो बनना है. Wow. From that young age. From that young age. Okay. तो 6 साल 8 साल की उम्र से. So I don't think that anyone forced me, या फिर मेरे डैड की कोई डैड ने कभी ऐसा बोला. But I think I was born with that thing कि I have to go into films. So I think it happened like that. Okay. That's interesting to know. And so much of exposure. I think that's really must have polished you a lot. बोलते डायमंड को बहुत ज्यादा घिसा हाँ, था तो वो पॉलिशिंग इन द सेंस कि एक तो मैं बहुत ज्यादा चीजों से आई अंडरस्टूड द व्हाट यू कॉल द एफिमेरल नेचर ऑफ थिंग्स की मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ आर टेम्पररी. सो दैट आई अंडरस्टूड. मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी अर्ली एज से कि मतलब घर भी टेम्पररी है, दोस्तियां भी टेम्पररी हैं, यू नो. सो दैट थिंग समहाउ इट केम इनसाइड मी. और वो जो एक मतलब नोमैडिक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक वो जो घूमने की वो आदत पड़ गई. So that helped me a lot when I came into film industry and when I started, moving into the film industry. Right. So that ways it was a good thing. Yeah. Wow. And I'll tell you some very interesting incidents कि जो मैं बोल रहा हूँ, just continuing on that, कि जब मैं छोटा था ना और मुझे कभी फीवर वगैरह हो जाता था,
तो मेरे मम्मी पापा मुझे एक फिल्म दिखा देते थे कोई भी, Okay. और मेरा फीवर ठीक हो जाता था। कौन सी फिल्म थी? कोई भी फिल्म दिखा देते। अच्छा। हाँ, इट्स लाइक मतलब अच्छा अगर अमिताभ बच्चन की दिखा दे तो नथिंग लाइक इट। तो अगर अमिताभ बच्चन की दिखा देते थे तो मेरा सिर्फ फीवर ही नहीं ठीक हो जाता था, मतलब मुझे शायद कुछ वैक्सीनेशन भी मिल जाता था। Oh my God. सो आई वाज या तो ये एकदम घर में एकदम वो बात थी कि जब भी, और मतलब एक दो बार ऐसा हुआ है कि मतलब फीवर है तो मैं स्कूल नहीं गया, घर पे हूँ, और घर से मुझे सिनेमा हॉल ले जाया जा रहा है। You can see how comical, how comical it is. Unique thing. कि फीवर से बचने के लिए, फीवर बीमार है तो बच्चा घर में है, लेकिन घर में फीवर क्योर कैसे हो रहा है? सिनेमा हॉल जाके डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे, सिनेमा हॉल लेके जा रहे। सिनेमा Wow. हॉल ले जाके क्योर कर रहे हैं। So it used to happen like that, but yeah, it was like that. So I found it interesting. ये मैंने पहली बार सुना है। Yeah, it used to happen, no? Okay. It used to happen because I don't know. As I said, na, it was something very congenital. मतलब I was born with it. वो factory settings था कुछ ऐसा Right. कि मतलब जब मैंने first time, I think I don't know if you remember the first film you saw, but I remember the first film I saw on big screen, and I remember how enamored I was by the first shot itself which I saw. So it was different. It was a different world for me. That's another level. of Yeah, passion. yeah. Amazing. So ऐसा होता है ना कि जैसे आप शायद स्पोर्ट्समैन के साथ होता है कि कोई सपोज आई थिंक इफ इट वाज सचिन तेंदुलकर और समवन, उन्होंने जब बैट उठाया होगा 2 या 3 साल के रहे होंगे, तो फिर उसको समझ में आ गया होगा दिस इज माय This is डेस्टिनी, it. Yeah. दिस इज माय डेस्टिनी। तो वो मुझे उस छोटी उम्र से ही समझ में आ गया था, और उसने मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि मुझे एक क्लैरिटी मिल रही थी कि जो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों में अपने आसपास कि मैं वो नहीं पाता हूँ कि मुझे लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है। Clarity. हाँ, क्लैरिटी एग्जैक्टली करना क्या है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, मतलब जब मैंने इंजीनियरिंग किया तो वो लोग जब मेरे साथ इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग मैंने मम्मी पापा को खुश करने के लिए किया था, तो इंजीनियरिंग जब कर रहे थे उसके बाद उन्होंने 5 साल 10 साल फॉरेन जाकर रहकर नौकरी करके MS करके वापस आए, फिर दे केम इनटू फिल्म इंडस्ट्री। दे सेड कि अरे अब मुझे अपना कॉलिंग मिला है। सो आई सेड एट द एज ऑफ 33 यू आर डिसाइडिंग व्हाट योर कॉलिंग, तुम्हारी कॉलिंग क्या है? Yeah. So I was very clear. So I was fortunate also in that sense. Okay. Wow. Quite unique experiences. Okay. So you're an actor, director, and a writer. Though I think I have an idea, but still, just in case you change your mind later, I would like to know what role do you find yourself most close to in terms of these 3? Look, I'll tell you something. You keep me in anything related to cinema. Okay. आप फिल्मों से रिलेटेड किसी भी जगह आप मुझे बैठा दो, आई एम लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी शॉप। Okay. तो मुझे जब भी मैं कोई भी काम करता हूँ, चाहे वो राइटिंग हो, डायरेक्शन हो या एक्टिंग हो, मुझे सब में बहुत मजा आता है, बिकॉज आई एम लिविंग माई लाइफ, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। ठीक है, What you wanted to do? या व्हाट आई वांटेड। सो इफ आई एम रियली, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता और मुझे ये सब चीज़ों में ब्रेक नहीं मिलता, तो मैं कहीं पे, मैं आपको सच बताऊँ, मैं स्पॉट बॉय भी बन जाता। क्योंकि आपको इंडस्ट्री से हाँ, तो मुझे सिनेमा के सेट पे रहना था, मुझे सिनेमा में काम करना था, तो मैं स्पॉट बॉय बन जाता। You understand? I get it. So I like everything, but being a director is a very natural progression. Coming to your point, and seriously speaking, कि being a director is a very natural progression, because as an actor also I'm telling a story. I am telling a story which my director is telling me, which my writer is telling me. ठीक है, तो वो मैं उनके हिसाब से वो कहानी उन लाइंस में मैं बोल रहा हूँ। So as a director also I'm telling a story, as a writer also I'm telling a story. The thing is the medium differs. As an actor, when I'm telling a story, I'm just telling a story through my voice, through my body language, through my eyes. As a director, when I'm telling a story, I'm telling a story from a camera point of view, from an audio point of view, and keeping the audience in perspective. As a writer, when I'm telling a story, I'm putting the story on paper. So ultimately, whether it is an actor, whether it is a writer, or whether it is a director, they all are telling stories, and they all are storytellers. In your own way. Yeah, in their own way. So it's hardly differentiating anything. But I enjoy being a director more, because being a director gives me a sense of power.
I was going to say command. Yeah. It gives me a sense of power, not in a very negative way, but in a very positive way. Like I feel like a true creator. When I'm an actor, I'll be very frank with you. I'm just a puppet in the hands of my director. Right. ठीक है, तो कभी कभार हम अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं जब, तो उनको पता होता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी या कैसे निकालनी है, राइट. कभी कभार हम नए डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं who are very brilliant in technical aspects and storytelling, but they don't know anything about acting. Right. And then you feel like I wish. हाँ, Yeah. तो फिर मुझे ये लगता है कि मैं अच्छा, और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो बड़ी जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये काम किया, हाँ ठीक लग रहा है यार, सही है। हाँ सही है, कर लेते हैं. तो वो जानते भी नहीं कि मेरी रेंज क्या है. और मैं तो ये थोड़ा सा आज की यंग डायरेक्टर्स में मैं इस बात को थोड़ा सा प्रॉब्लम देखता हूँ. मैं जो पुराने बहुत बड़े लेजेंड डायरेक्टर्स के साथ भी मैंने काम किए हुए हैं, people who are there in Guinness Book of World Record, people who have directed more than 70-75 films. ऐसे लोगों के तो मैंने ये देखा है कि they were never easily satisfied. कि they used to always मतलब keep on exploring कि और क्या दे सकते हो और कैसे दे सकते हो, you know, और किस तरीके से दे सकते हो. It used to be very, और कभी कभार ना हमको भी नहीं पता होता था कि मतलब हमारे अंदर क्या है, हम ये कर जाएंगे, हमको भी नहीं पता होता. तो मतलब आई एम जस्ट डिग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, लेकिन व्हेन आई वेंट टू साउथ तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं कॉमेडी भी अच्छी कर सकता हूँ. Okay. हाँ, मैं अपने आप को बड़ा इंटेंस एक्टर मानता था कि ठीक है, मैं विलन रोल कर रहा था मुंबई में, मैं नेगेटिव रोल्स कर रहा था, और मैं थिएटर भी जो करता था बड़ी इंटेंस रोल्स करता था, सेमी साइकोटिक काइंड ऑफ. अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, और मैं कॉमेडी में सुपर हिट हुआ. मेरी पहली 3 फिल्में कॉमेडी में सुपर हिट हुई. और तो मतलब यू रियलाइज मैं एक दिन एक बड़ा सिंपल सा सीन था और मैं अपने डायरेक्टर के सामने कर रहा था, और मेरे डायरेक्टर ने कहा मिस्टर YVS चौधरी इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, ही गेव ब्रेक टू मी, ही गेव ब्रेक टू राम, he gave a break to Ileana, so he always looks for young talent and he gives break to. तो उन्होंने कहा यार तुम्हें पता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ कैमरे पे, अरे मॉनिटर नहीं होता था उस टाइम पे, तो तुम्हारे अंदर ना थोड़ी सी मुझे जिम कैरी वाली बात लग रही है, तो why don't you try to do it कि तुम थोड़ा इसको ओवर करो. फिर वो स्टाइल बन गया मेरा. अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मैं कॉमेडी इतनी अच्छी कर सकता हूँ, या फिर तो ऐसा हो गया कि अच्छा अब एक तो एलियन लैंग्वेज में मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, कॉमेडी भी मेरे साथ सुनील है, ब्रह्मानंदम है, उनकी इतनी अच्छी टाइमिंग्स होती थी, लेकिन somehow I was able to, I did not know that I'm such a good comedian also. So that I only got to, जब आप करते हो ना तो आपको पता चलता है. तो it all depends on the director as well. कि डायरेक्टर्स जो पुश करते हैं ना, तो वो आपको sometimes they help you in discovering yourself also. Aspects that you don't know. हाँ, aspects that you don't know. बाकी कोई डायरेक्टर ऐसे होते हैं कि उनको मेरा 10% ही बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, you know, आपके लिए उतना है तो ठीक है. बट आई लेटर ऑन टेल देम कि भाई मैं इसको ऐसे भी, लेकिन यंग डायरेक्टर्स के साथ मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, बिकॉज दे नो आई एम अ डायरेक्टर, सो वो इंटरफेरेंस में ना चला जाए. ऑफेंड हो सकता है, ऑफेंड नहीं, वो इंटरफेरेंस में चला जाता है. हाँ, कि यार ये अपने ढंग से करना चाहता है, तो आई जस्ट, हाँ अगर कोई पुराना एक्सपीरियंस डायरेक्टर है तो आई टेक दैट लिबर्टी कि सर मैं ये भी करना चाहता हूँ, आप देख लो, इफ यू लाइक इट आई विल डू लाइक दैट, अदरवाइज. व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट व्हेन यू फेल्ट सिनेमा वाज योर ट्रू कॉलिंग? टर्निंग पॉइंट तो वैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ है ना, मैंने उस छोटी सी उम्र में भी, हाँ जब भी जो छोटी समझ होती है तो उस समय हमको ये लगता था, हमको नहीं पता था ना एक्टर क्या होता है, ये क्या, बस देखा और नहीं हीरो बनना है ना. तो वो मूवी देख के हाँ, I was it was the name of the film was मुकद्दर का सिकंदर, and it was in rerun, so it was 1981 and I was like 5 years old. Okay. So that was the first film I watched on big screen. क्योंकि मैं छोटे शहर में रहता था, वहाँ फिल्में कभी उस जमाने में फिल्में 2-2 साल बाद आया करती थी छोटे छोटे शहरों में, अदरवाइज यू हैव टू गो टू अ बिग सिटी टू वॉच इट. हाँ तो it was 1981 and I saw that thing and I said मुझे बस यही करना है, और वो फैसिनेशन कभी गया ही नहीं. और तो people react to different things in a different way. My sister was there with me when I was watching that film only and she cried throughout the film. और उसको बार बार सिनेमा हॉल के बाहर ले जाना पड़ा. कुछ बच्चे जो रोते नहीं है बहुत ज्यादा,
वो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी है, लेकिन उसको बार बार बाहर ले जाना पड़ रहा था. एंड हियर आई वाज हैविंग द टाइम ऑफ माय लाइफ. Like, wow, ये मुझे करना है. ये मुझे करना है. तो ये लोग, तो दैट वाज द, बट इन रियलिटी आई स्टार्टेड परस्यूइंग इट in a very dedicated and in a very almost like a mad person. When I was doing my engineering, what happened is that one of my best friends, his name was Devendra Upadhyay. He died. So, and I was in my first year of engineering, and he was always full of plans कि मैं ये करूँगा. उसकी पूरी लाइफ एकदम पूरी प्लान थी कि मतलब everything planned थी. मतलब वो इतनी प्लानिंग करता था कि क्लास का हेड भी था, रिप्रेजेंटेटिव भी था, और वो अपने असाइनमेंट से लेकर उसकी अपनी शादी तक, नौकरी तक, सब उसके दिमाग में प्लान थी. एंड अनलकीली एक कॉलेज पिकनिक पे ही डाइड. हाँ, सो दैट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. एंड उस पॉइंट से मुझे ये लगा कि लाइफ कितनी फिकल है. सो यू शुड नॉट पोस्टपोन एनीथिंग, एंड यू शुड नॉट वेट कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा. बिकॉज एडल्ट होने के बाद क्या होता है, बिकॉज यू आर ऑल्सो देयर इन दिस काइंड ऑफ अ फील्ड, यू गेट लॉट्स ऑफ प्रेशर कि भाई ग्रेजुएशन कर लो. और फिर बिकॉज आई केम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो ग्रेजुएशन तो कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो. एग्जैक्टली, उसके बाद जो करना हो कर. तो आई वॉज गेटिंग इन टू दैट जोन वेर आई वॉज गेटिंग डबल माइंडेड अबाउट माई पैशन. सो बट दैट लाइक रियली फोकस्ड कि नहीं, तो आई स्टार्टेड डूइंग इट. और फिर मतलब इवन जरा सा भी मुझे स्पेयर टाइम मिलता था मेरी पढ़ाई से, या छुट्टियां होती थी, बाकी बच्चे अपने घर चले जाया करते थे, आई यूज्ड टू कम टू मुंबई एंड डू ऑल दोस काइंड ऑफ वर्क. एंड यू नो, या फिर आई यूज्ड टू डू थिएटर. जब सारे बच्चे अपने घर जाते थे मम्मी के हाथ का खाना खाने, तो भी मैं थिएटर करता था. सो आई वाज दैट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि वो जो इंसिडेंट हुआ, इट रियली जोल्टेड मी कि व्हाई एम आई ड्रिफ्टिंग. Right, because you must have thought कि you have to just, you know. I thought, और फिर मुझे एक जोल्ट मिला कि प्लानिंग एक हम करते हैं, एक ऊपर वाला करता है. तो और मैंने मतलब वो मेरे हैबिट में भी आ गया, वेदर यू बिलीव इट और नॉट. बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप साउथ कैसे चले गए, आपने ये काम कैसे कर लिया, आपने वो काम कैसे कर लिया. मैंने कभी कोई चीज प्लान नहीं की, कभी कोई चीज प्लान. जो हाँ, जितने मेरे सक्सेस हैं वो सब ऑटोमेटिकली हुए, लेकिन फेलियर्स मैंने प्लान किए अच्छे से. मतलब कहने का मतलब, जब भी मैंने कुछ प्लान किया तो वो फेलियर हुआ. जब मैंने प्लान नहीं किया, सरेंडर किया तो सब. हाँ. So I never planned my success, but I really planned my failures. Okay. So this is what actually, you know, so happened in my life. तो मैंने एक point के बाद I stopped planning anything. I just go with the flow. How it all comes. Yeah, things will fall in place. I don't know. Because मैंने कभी I'm telling you ना, I did not plan anything. तो लोगों को लगता है it's not easy. मैं आपको एक ही बात बताता हूँ. Why I say it and I say it with conviction. मैं एक यूपी का लड़का हूँ, ठीक है, एक बहुत ही छोटी जगह से आया हुआ लड़का हूँ, राइट. मैं साउथ में हीरो कैसे बन सकता हूँ? By what stretch of imagination? And how can I have a 20-year career? And no background. And no background. Yeah. Did I plan it? No, no one can plan. मुझे तो लैंग्वेज भी नहीं पता थी. मैं तो जब हैदराबाद पहली बार गया, तो मैं जब फिल्म करने गया तब मैं पहली बार गया हैदराबाद, नहीं तो मैं गया ही नहीं था हैदराबाद. तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या है, you know. So I cannot plan. Right. और जब so that's what happened. So that's why I believe a lot in that. कि go and if you're on the right track. लेकिन मैं इतनी सी बात कहूँगा कि if you're on the right track और आपका self evaluation correct है. Self evaluation is very important. कि आप किसी delusion में नहीं हो, आप किसी फालतू चीज में नहीं हो, और आप वाकई मेहनत कर रहे हो. Believe me, life is not unfair. मेरे साथ लाइफ में बड़ी अनफेयर चीजें हुई हैं, लेकिन लाइफ इज नॉट अनफेयर. गॉड विल डेफिनेटली, यूनिवर्स, serendipity, call it whatever you want, it will put you somewhere where you fit. Yes. You directed movies like Masab, Banduk. So where does the social urge to direct such, you know, socially relevant films, like इतना मैसेज देने वाले फिल्म्स को बनाने के लिए ये urge कहाँ से आती है? To answer this question, मुझे थोड़ा सा हल्का सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा. Okay. When I entered South film industry, I was doing very well.
ठीक है, my first 3 films were super hits. Okay. And I was competing with the so-called superstars of today. Okay. You know, people who are the biggest stars Okay. today in India. But after a certain period of time, my career went absolutely downstairs. I cannot say if was. I'll say it is bad luck. A lot of people tell me it was politics, it was this, that. A lot of things were done with me, to me, but I don't take it negatively. So there was a process of growth which was happening with those failures. Right. So for a person in the year 2002, 2003, 2004, the entire world was at my feet. And for a person to fall from that, and I had 11 consecutive flops. And there came a point in my career around 2010 when I was sitting at home not doing anything. So for 2 or 3 years, 2 years, I was not doing anything. I was not even earning a single rupee. But at that time, certain growth was happening inside me. Ki bhai, if I have to make films, what kind of films I want to make? Then also because I've already done, at that point of time, I had done more than 20-21 films as the main lead. So, and I was still very young. So I did not want to go as a character actor. Right. You know, because you can't start doing character actor when you're 32 or 31 or 33. You don't want to do that. So I didn't do that. Then what to do? Then I said, okay, let me come back to Mumbai and let me start exploring some certain things, you know. So फिर मैं वापस मुंबई आया. वापस कहने का मतलब I started concentrating more here. And in that process और उसमें के बीच में जो मेरी growth भी हो रही थी, तो मैंने ये सोचा कि let me make some, अच्छा, because I was not a very established director. I was only getting limited budgets to work with. So उस बजट में मैं कुछ कमर्शियल कर भी नहीं सकता था और मैं अंदर से भी कुछ ऐसा करना चाहता था कि जो which can give not kind of a message but which can you know explore certain new aspects of things. So I did films like Banduk, I did films like Masa. I also did a film called Mehla, which was selected by NFDC. And I also made a film for a foreign company called The Dead End. But in all of these films, they were not very commercial big films. I was given a very limited budget, and you know, you'll be surprised. Mas Saab I made in a budget of only 25 lakhs, and it was a farmers cooperative who produced that film. और उन लोगों ने, and that film made in a budget of 25 lakhs gave me the maximum amount of accolades and awards and maximum amount of recognition. Because of Masab, I could make again a 6 crore, 8 crore film like Santu Karam and other films which I am doing right now. So because of all these circumstances, I started, and I started working on these kind of films. And as I said, there was a certain growth which happened during my bleak period. Right. So I also realized one thing that जो लोग बोलते हैं ना कि सिनेमा का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है. तो what I believe is that सिनेमा, और आजकल एक और वर्ड निकल गया, कंटेंट क्रिएशन. ठीक है, कंटेंट अच्छा होगा. डिफाइन कंटेंट फॉर मी. व्हाट डू यू थिंक इज अ कंटेंट? सिनेमा इज नॉट कंटेंट. Frankly speaking, for me, cinema is cinema. Yeah, it is not content. Content is maybe something which you might be making for 30 seconds or like 1 minute, like a reel or something, or like a short video, or maybe you can call that content. But cinema is so totally different thing. No? Cinema is an experience. Cinema is a therapy. You can say whatever, but it is. So what happened? I realized that it is not only entertainment; it is also kind of a consciousness creation. Because we get inspired by films. We follow film actors. हम उनकी लाइनें बोलते हैं, हम उनके जैसे बाल रखते हैं, हम उनकी स्टोरीज देखकर इंस्पायर होते हैं. कितनी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि लोगों की जिंदगियां बदल गई किसी फिल्म की वजह से, तो अच्छा, ये हमेशा से इंडिया में ऐसा होता आया. और हमारी जो ग्रेटेस्ट फिल्म्स हैं, हमारी जो बिगेस्ट फिल्म्स हैं, वेदर इट इज व्हाटएवर राज कपूर यूज्ड टू मेक, whatever Rajkumar Hirani makes, all these kind of, there's always a message there. There's always a point there, It's not mindless entertainment. Mindless entertainment क्या होता है? या फिर तुम क्लाउन शो देखो ना यार. लेकिन क्लाउन शो में भी एक स्टोरी होगी. Yes, yeah.
ऐसा हो नहीं सकता कि कोई स्टोरी ना हो, कोई बचपन से हम सिनेमा स्टोरी टेलिंग ही तो है, और बचपन से हम कहानियां और कौन सी कहानी में मॉरल नहीं होता है बताओ? जो कहते हैं कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है, कौन सी कहानी हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक क्वेश्चन आता था. तो एवरी स्टोरी हैज अ मॉरल, एवरी, सो वी शुड आल्सो थिंक ऑफ थिंग्स लाइक कॉन्शियसनेस क्रिएशन क्या होती है, और कंटेंट के साथ साथ आप कुछ ऐसी चीज दे जाओ किसी को जो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो. ठीक है. सो व्हेन आई वाज मेकिंग मास साहब, आई कुड एक्सप्लोर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, वो भी प्राइमरी एजुकेशन, वो भी रूरल. सो व्हेन आई वाज मेकिंग बंदूक, I really went very deep dive into the gun culture prevalent in North India. Okay. But I was unlucky in the sense that my film got delayed by 4, 5, 6 years, and Gangs of Wasseypur came before my film. Oh. And both the films are almost like similar. Both the films are almost like similar films. So वो second run वाली बात हो जाती है. Yeah, you came second. Yeah. तो again when I was making the Dead End, I was exploring, mental health जो बोलते हैं. I was exploring what mental health is all about. When I made Mehla, I was exploring what untouchability is all about. Even when I recently made Sant Tukaram, it was all about what actually is devotion, what actually is God, what is the essence of religion, what is the essence of love. So I was exploring all those things through the Sant Tukaram film. So it is such a natural and it is such a beautiful process, that you get to do so much through films. Right. So any filmmaker, any honest filmmaker will say that it is a part of the process. Even if I make a mindless entertainment tomorrow, again there will be some message, something. Yeah. Because that is a part of this thing. People learn from films. We don't realize, subconsciously we learn from films. So no filmmaker can say that, I believe that most of the filmmakers do have a social conscience. लेकिन ये इस तरह की फिल्में थोड़ी इसलिए हाईलाइट हो जाती है ना, क्योंकि कमर्शियल नहीं होती हैं. तो लोगों को ये लगता है कि मतलब ये सिर्फ सोशल ऐसा, तो वैसा है नहीं. बट एवरी फिल्म मेकर हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Today is a very competitive industry, Yeah, it is. And you being an independent filmmaker, Yeah. what do you think are the challenges that you face? Oh my God, 1000 challenges. Tell us. 1000 challenges. एक तो बहुत बड़ी बात क्या हो गई है कि I don't know whether the industry has changed for the good or for the bad. Organic success आज की डेट में बहुत कम हो गई है. Things are, I'm not going to the stage to calling it totally fake. हाँ, what I will say is they are manufactured success हो गई है. Yeah, so true. Yeah. So I will not call it fake. तो ये जो manufactured success की जो process है, उसमें जो रियली इंडिपेंडेंट आदमी है या लड़की है या whoever who are trying to shine, उसमें बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, एक तो ये चैलेंज है. अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब से कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ इंडिया में और कॉर्पोरेट्स बहुत डीपली फिल्मों में आ गई 2008 के बाद से, तो उसके बाद से स्टैटिस्टिक्स मोर इम्पोर्टेंट हो गई है. नंबर्स. ठीक है, कि इतना करोड़ किया कि नहीं किया, ये इतना लेगा, वो उतना लेगी, और उसके बाद ये फिल्म चलेगी कि नहीं, ये कितना बिजनेस होगा, सैटेलाइट क्या जाएगा, OTT. पहले जो फिल्म मेकर्स होते थे वो सिर्फ ऑर्गेनिक सक्सेस पे बिलीव करते थे. आपने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बनाई हो, शाहरुख खान के साथ बनाई हो, आमिर खान के साथ बनाई हो, अगर फिल्म नहीं अच्छी होती थी तो कुछ भी नहीं चलता था. There used to be no guarantee of any money, only the box office money. ओके, सैटेलाइट वगैरह भी बाद में चालू हुआ. आफ्टर द सैटेलाइट इन्वेजन हैपेंड इन 1993 और 94. तो उसके अलावा क्या था, सिर्फ दूरदर्शन था और बॉक्स ऑफिस. तो आपको बनानी ही पड़ती थी ऐसी फिल्म जो वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस को सूट करे और जो वो एक्सेप्ट. तो जो सक्सेस होती थी वो सारी की सारी बड़ी ऑर्गेनिक सक्सेस होती थी, चाहे वो एक्टर की हो, चाहे वो डायरेक्टर की हो, और वो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती थी. तो आज की डेट में ये जो सारी चीज़ें अब मैन्युफैक्चर की जाती हैं. ठीक है, अब नंबर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. यू कैन नॉट इवन ट्रस्ट दोस नंबर्स की जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स आ रहे हैं कि वो रियल हैं, फेक हैं, इन्फ्लेटेड हैं, या सेल्फ प्रोमोटेड है या सेल्फ डन है. तो हाउसफुल टिकट्स. हाँ, तो ये अब नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया. अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि जैसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते थे. Like at least, I remember when I came to Mumbai, there were at least 200 producers. Right.
मेकिंग फिल्म्स कंटिन्यूसली, Okay. ठीक है, एवरी ईयर 2 फिल्म्स, नहीं तो 2 सीरियल कोई बना रहा है। अब 8 या 10 प्रोडक्शन हाउस हैं जहाँ मैक्सिमम काम होता है, चाहे वो वेब सीरीज हो और चाहे वो फिल्में हो, सिर्फ 8 या 10 प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो वहीं पे मैक्सिमम काम होता है। तो इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, तो देन यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स। और फिर आपको समझ में भी नहीं आता है कि भाई, देखने में तो आप जाओगे, आपको लगता है इतना काम हो रहा है और मैं क्यों नहीं हूँ, राइट? लेकिन द थिंग इज, पहले 200 लोग काम कर रहे थे, 200 प्रोडक्शन हाउसेस, अब 8 या 10 कंपनीज काम करती हैं जो मतलब हु वर्क इन अ कॉर्पोरेट स्टाइल, और बहुत बैरियर्स हो गए। जो अब मुझे जो आप एक और चैलेंज क्या हो गया कि यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पीपल। व्हेन आई केम टू मुंबई 90s के लास्ट में, will you believe the first person I met was Mr. Feroz Khan, who was a dashing director, and I just called him and I met him in 2 days. A nobody just called him, and similar thing happened with Dev Sahab, Devana Sahab. Similar thing happened last days of Dada Muni, Ashok Kumar, and all the great directors. Shekhar Kapoor was writing. I could meet him in 3 days. I just went to his office and he met me. And he gave me 30 minutes. Now today it is impossible. Yeah. You keep waiting, drop mails. No, it is not drop mails. Yeah. It is you have to go through 1,000 Yeah, people, yeah. 1,000 Yeah. protocols. Yeah. There are EPs, there are casting directors, there are XYZ. For as a director, I face a lot of EPs. Yeah. As an actor, you might be facing, or if anyone, is a lot of casting directors and all. तो ये जो एक मतलब फिर से बहुत सारे लोग आ गए बीच में, ये जो लेयरिंग हो गई है, ये जो चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं बची हैं, यू आर डिपेंडिंग ऑन सो मेनी पीपल फॉर द वर्ड ऑफ माउथ एंड फॉर प्रमोटिंग यू। और तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ों ने काफ़ी मतलब आई फाइंड इट वेरी चैलेंजिंग। एज ए डायरेक्टर ऑल्सो आई फाइंड इट चैलेंजिंग। मैं प्रोड्यूसर्स को अपनी स्टोरी बताऊँ, उनको अच्छा लगे, दे विल प्रोड्यूस द फिल्म, राइट? अब इट डज नॉट हैपन लाइक दैट. And so it is a very challenging thing. Right. So there are processes for it, there are corporates for it, but you don't really know what is going to happen where. So ये है कि the decisions are taken by very few people, right. And it's not like too many people are taking too many decisions so you can do, you know. So hardly I think 8 or 10 people are running the industry, also in South and also here. Achha. That's it. So अगर आप उन 8 या 10 लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आपका काम उस विजिबिलिटी और उस रेंज पे दिखेगा. अदरवाइज अच्छा, अब ये 8 या 10 लोग अच्छे क्रिएटिव हैं कि नहीं, इसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री डिपेंड कर जाएगी. अगर ये 8 या 10 लोग क्रिएटिव हैं तो साउथ की इंडस्ट्री शाइन कर जाएगी. अगर यही 8 या 10 लोग जो बॉलीवुड चला रहे हैं ये क्रिएटिव नहीं है तो यहाँ की इंडस्ट्री डाउन खत्म हो जाएगी. सो ये एक बहुत अजीब सी प्रोसेस हो गई है. आई फाइंड इट चैलेंजिंग एट सो मेनी लेवल्स, बीइंग एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर. So many insights that you got deep in. It is true. How do you adapt your storytelling to people? मतलब as an अलग-अलग audience जब हम storytelling करते हैं, how do you adapt that? क्या है कि वैसे तो सारे इंडियंस एक जैसे ही हैं और मोस्टली सब एक जैसे ही सोचते हैं, ठीक है, और एक ही जैसे हमारे टेस्ट हैं क्योंकि हमारी फिल्में भी ऑलमोस्ट एक हैं. लेकिन जैसे जब मैं साउथ की फिल्मों में काम करता हूँ तो वहाँ का जो सटलिटी होता है ना, वो बॉलीवुड का वो लाउड में आ जाता है. तो सो वहाँ पे हमको थोड़ी सी सारी चीज़ें I will not say categorically, but things are more brighter, things are more louder, things are more colorful, things are more larger. So this is how I also have to program my performance. Right. तो अगर मैं कोई फिल्म साउथ में करके एज एन एक्टर भी बोलता हूँ, फिर एज ए डायरेक्टर बाद में बोलूँगा, अगर मैं कोई फिल्म साउथ में 3-4 महीने लगातार मैं 1-2 फिल्मों की शूटिंग करके आया और मैं कोई बॉलीवुड का कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज थोड़ा सा वी कीप इट. अगर एक 10 की स्केल पे अगर आपको परफॉर्मेंस 7 या 8 वहाँ रखते हैं तो फिर यहाँ आके 4 या 5 ही कर देते हैं. तो एक तो थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होता है लोगों का, है ना. वहाँ पे अगर मैं 4 या 5 करूँगा तो वो लोग, उनको वो एक्टिंग लगती नहीं. एक्चुअली एक्टिंग लगनी नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं अरे सर कुछ तो सर, हाँ कुछ एनर्जी कुछ दीजिए.
तो वो एक अलग बात हो जाती है. ऑडियंस, अच्छा एज अ डायरेक्टर व्हेन आई वर्क, साउथ के जो कमर्शियल सिनेमा है उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है. Okay. हाँ, मतलब जो मसाला, कमर्शियल सिनेमा बोल रहा हूँ, तो जो मसाला हमारे यहाँ बॉलीवुड में जो मसाला एक फिल्म के लिए बहुत होगा, वो मसाला साउथ में सिर्फ आधे घंटे में खत्म हो जाएगा. साउथ के अगर मैं कमर्शियल फिल्म बना रहा हूँ, Okay. ठीक है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है बॉलीवुड की कोई बहुत बड़ी फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म है, कुछ रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे बनी है, तो वो पूरी 2.5 घंटे की फिल्म है. लेकिन अगर वही फिल्म मैं साउथ में बना रहा हूँ, तो उसको मैं 10 मिनट की करके, मतलब उतना मसाला मैं 10 मिनट का करके सिर्फ हीरो का इंट्रोडक्शन बता दूंगा उस टॉपिक को. तो लोग सेटिस्फाई को क्या, जैसे थाली है, शायद हमारे यहाँ हम एक बिरयानी खाकर या बटर चिकन या दाल रोटी सब्जी सेटिस्फाइड हो जाते हैं. साउथ में हमको पूरा थाली हमको सजानी पड़ती है, जिसमें आपको 5 सब्जियां, 2, यू अंडरस्टैंड. सो दे आर नॉट सेटिस्फाइड. आप कभी भी ध्यान से साउथ की कोई भी फिल्म देखिएगा, आपको ये लगेगा कि एक फिल्म में मैं 3 या 4 फिल्में देख रही हूँ, व्हाटएवर, यू नो, because you will find a second half which will be totally different from the first half. अच्छा, हीरो के भी एक शेड नहीं रहेगा, ठीक है. हीरो विल बी हैविंग अ फ्लैशबैक जहां पे उसके एक कुछ अलग शेड रहेगा. हीरोइन भी एक नहीं रहेगी, कम से कम मिनिमम 2 हीरोइन रहेंगी, अगर 3 नहीं हुई तो, ठीक है. तो ये सब टेम्पलेट पे वो लोग काम करते हैं, और उसके पीछे रीजन ये है कि उन्होंने ज्यादा मसाला फिल्में और इस तरह की फिल्में बनाई हैं, तो अब वो ज्यादा मसाला और देखना चाहते हैं. तो वो अगर मैं एज ए डायरेक्टर एक कमर्शियल फिल्म साउथ में बना रहा हूँ, तो मुझे उन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. बॉलीवुड में मैं एक छोटा सा पॉइंट रखकर एक अच्छी सी मैं कमर्शियल फिल्म भी बना सकता हूँ, और वो फिल्म शायद चल भी जाए. हाँ, है ना. लेकिन साउथ में मुझे बहुत ज्यादा उसको वो करना पड़ेगा, बहुत फास्ट रखना पड़ेगा, बड़े सारे इंसिडेंट्स दिखाने पड़ेंगे, कैरेक्टराइजेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा, हीरो के मैनरिज्म पे बहुत काम करना पड़ेगा, सॉन्ग्स को नेक्स्ट लेवल रखना पड़ेगा, हाँ, लैविशनेस रखनी पड़ेगी. तो वो वहाँ की मेकिंग है. यहाँ की मेकिंग एक अलग है, थोड़ी सी हॉलीवुड के पास है, लेकिन यहाँ सॉन्ग्स वगैरह यहाँ पर भी होते हैं, तो दोनों की मेकिंग और स्टोरी टेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है. What truly defines Aditya is his philosophy of cinema. He sees films not merely as entertainment, but as a powerful tool for awareness, healing, and change. So that was Aditya Om, the super talented writer, actor, and director. Keep watching Meri Kahani, Meri Zubani.